সবাইকে বলছি বড় মালা দিয়ে আর নাড্ডাজি, দিলীপ দা এবং আর সবাইকে বর্ডার করার জন্য বড় মালা যাত্রী যুব মোর্চার সকলকে আমি অনুরোধ করছি আজকে তিনি আপনাদের সামনে দু চার শব্দ রাখবেন। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। जय श्री राम, जय निताय। এই পবিত্র ভূমির সমস্ত সুধী নাগরিক মা বোনেরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার প্রণাম। আর যাকে দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রসাদ নাড্ডা, তিনি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। প্রত্যেক মাসে বারে বারে উনি এখানে আসছেন আমাদের লড়াইটা সাথী হয়ে তার আশীর্বাদে যাতে বাংলায় আমরা সরকার গঠন করতে পারি তার জন্য সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা মালদা থেকে আসছি, এখন সকালে কলকাতা থেকে বেরিয়ে মালদাতে বিশাল কয়েক হাজার কৃষকের সঙ্গে তিনি বসে সহভোজ করলেন। বাড়ি বাড়ি থেকে যে পুরো চাল ডাল আমরা সংগ্রহ করেছিলাম তাতে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। সম্মানীয় সভাপতি হাজার জনের সঙ্গে মাটিতে বসে খিচুড়ি প্রসাদ দিয়েছেন। আর তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র জন্মভূমিতে তার জন্মস্থান দর্শন করে আপনাদের সামনে পার্টির বক্তব্য রাখার জন্য এসেছেন। তার এই যে আমাদের প্রতি ভালোবাসা আশীর্বাদ, তার জন্য আমি মাননীয় নাড্ডাজিকে বারবার নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় কৈলাস 6 বছর ধরে আমাদের অভিভাবক হিসাবে এখানে পার্টির কার্যকর্তাদের দিশা দর্শন করছেন। এছাড়া আমাদের বরিষ্ঠ নেতা মাননীয় মুকুন্দা, অতি আমাদের প্রদেশের একজন সহ অবজারভার মাননীয় অমিত মালবীয়, মাননীয় রাজু ব্যানার্জি সহসভাপতি প্রদেশের, জেলা সভাপতি আসুদা, আমাদের প্রদেশের বরিষ্ঠ নেতা প্রাক্তন সভাপতি সর্বভারতীয় প্রাক্তন সম্পাদক সম্মানীয় রাহুল দা, মাননীয় বালুদা ডক্টর বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী যিনি সহসভাপতি, আমাদের মাননীয় জনপ্রিয় সাংসদ শ্রী জগন্নাথ সরকার মাস্টারমশাই এবং অতি সম্প্রতি যিনি পশ্চিমবাংলার পরিবর্তনে নিজের যৌবন শক্তি লাগাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন শ্রী রাজীব ব্যানার্জি। এছাড়া পিছনে বহু কার্যকর্তা উপস্থিত আছেন, সবার নাম বলার সময় নাই। আমি সবাইকে স্বাগত করছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। সর্বোপরি আপনারা যে বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সফল করেছেন তার জন্য আবার আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বক্তা নই, আমি খালি মাননীয় নাড্ডাজির সঙ্গে এসেছি এই যে বিশাল জনসমাবেশে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এইটা বলার জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের এই পরিবর্তনে সম্পূর্ণভাবে সহভাগী এবং এই যে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে রাস্তায় পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। পুরো নবদ্বীপ শহর ঘুরে এলাম, বাড়ির মধ্যে একটা লোক নেই, সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, জয় শ্রীরাম বলছেন। আপনাদের এই উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরিশ্রম এ সম্পূর্ণ সম্মান করে আমরা বাংলায় পরিবর্তন করব। ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ লক্ষ লক্ষ কর্মী দিনরাত পরিশ্রম করছেন বাংলায় সুশাসন আনার জন্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। তার জন্য 135 জন কর্মীকে জীবন বলিদান দিতে হচ্ছে, তাদের হিংসার শিকার হতে হচ্ছে। 29,000 কেস আমাদের উপরে চলছে, হাজার হাজার কর্মী পুলিশের ভয়ে বাড়ি থাকতে পারছেন না, হাজার হাজার কর্মী আজকে জেলের মধ্যে আছেন, তার পরিবারকে দেখার কেউ নেই। পার্টি তাদের দায়িত্ব নিয়েছে। তাই বন্ধুগণ, আপনাদের এই যে পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, এই তপস্যা, তিতিক্ষা, এটাকে আমরা ব্যর্থ দিতে হবে না। আমি রাজ্য সভাপতি হিসাবে বলছি আমরা এই সম্পূর্ণ করবে। তার জন্য যত বলিদান লাগে বাংলার পরিবর্তন করে বাংলায় সুশাসন আনবো, মোদী রায় আনবো। কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার এক হয়ে বাংলায় সোনার বাংলা বানাবে। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। আমরা এতক্ষণ যার জন্য অপেক্ষা করে আছি, আমাদের সর্বভারতীয় যশস্বী সভাপতি এবং নেতা, আমার তো যুব মোর্চার সময় উনি যুব মোর্চারও নেতা ছিলেন, সেই জেপি নাড্ডাজি সাংসদ, উনি আপনাদের সামনে এবার কিছু বক্তব্য রাখবেন। নাড্ডাজি।
पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल राय जी, मंच पर विराजमान भाई राजीव बैनर्जी जी, हमारे सांसद जगन्नाथ सरकार जी, हमारे सांसद सुकंतो मजुमदार जी, आशुतोष पाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और नेता राहुल सिन्हा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने क्षेत्र में नवोदीप के क्षेत्र में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबाई के नमस्कार। मित्रों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पर आया हूं। आज मैं बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आया हूं। हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती पर, पवित्र धरती पर आया हूं। बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती पर आया हूं। हमारे श्री अरबिंदो की धरती पर आया हूं और हमारे एकता के सूत्र में बांधने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आया हूं। ऐसी पवित्र भूमि को, ऐसी पवित्र धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, এটা परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो चुकी, यहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन। आपको मालूम है 10 साल पहले माटी, मानुष, इसकी सौगंध लेकर के ममता जी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा और जहां तक माटी का सवाल है उसकी भी इज्जत नहीं की गई और जहां तक मानुष का सवाल है उसकी भी रक्षा नहीं की गई। ये माटी मानुष के नाम पर आई हुई सरकार, इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया और यहां आया क्या? तानाशाही। कैसी तानाशाही? आपको मालूम है, प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ, प्रशासन को साथ साथ पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हुआ और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है, मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान हमने चलाया, 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ
किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने नहीं सिर्फ बंगाल की रक्षा की। आप सबको मालूम है कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था, चला गया होता, ये बांग्लादेश के साथ मिल गया होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और अगर पाकिस्तान के दो हिस्से हुए तो भारत के अंदर बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। यह हम सब लोग जानते हैं। और जब वो देश में निकले तो उन्होंने कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। आज मुझे खुशी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक विधान हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा। आयुष्मान भारत होवे ना, अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज सालाना गरीब आदमी को। कौन है गरीब आदमी? रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ये गरीब आदमी। इनके बारे में चिंता करने की बात थी। इस चिंता को जब देखने की बारी आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा देने का प्रयास किया। यहां भी 80 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलता, लेकिन ममता जी ने नहीं है, ये आयुष्मान भारत नहीं दिया। मैं जानना चाहूंगा परिवर्तन यात्रा में हमारे एक एक नेता बंगाल की जनता को बताएं, उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी। ममता बीच में अड़ंगा बनकर के खड़ी रही। अब ममता जाएगी, अड़ंगा खत्म होगा, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा। यह बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक लगभग 70 लाख किसानों को यह पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। एक साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना था 70 लाख किसानों को। ममता जी चाइना होवे ना, यहां चाहिए नहीं, यहां होगा नहीं। अब ममता जी जाएंगी और सीधे सीधे 70 लाख किसानों को उनका अपना ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी और उनके विकास में हम योगदान करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। यह कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना होगा। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत होगी। अभी ममता जी जहां मेरी रैली होती है वहां दोनों पीसी और भाईपो दोनों के पोस्टर दोनों तरफ लग जाते हैं, नमस्ते करते हुए मेरा स्वागत करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जहां जाओ मेरे पोस्टर हटा देंगे और एक तरफ पीसी, एक तरफ भाईपो, स्वागतम। और जब मैं जाने लगता हूं तो कहते हैं धन्यवाद। ये यहां का हालचाल हो गया। मित्रों,
और आपको मालूम है यहां की संस्कृति की रक्षा की बात ममता जी करती है। ये परिवर्तन की बात है, ये अरविंदो की धरती है, ये विवेकानंद ठाकुर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, ये पुण्य लोगों की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यहां की संस्कृति ममता जी आप नहीं संभाल सकोगी। इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, ये हमको समझना चाहिए। आप तो जिस तरीके से मेरे नामों के आगे विशेषण लगाती हैं, वह बताता है कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। वो बताता है कि आपने बंगाल की संस्कृति का निरादर किया। बंगाल की संस्कृति की रक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। इतने साल आप कांग्रेस पार्टी में रही, इतने साल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में और यहां राज किया, कहां भूल गए थे सुभाष चंद्र बोस जी को? और अब क्यों याद आ रहा है? अब इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, सभी अभियानों को अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए की सरकार में देश को एक लंबी छलांग लगा करके विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। बंगाल उसमें पिछड़ रहा है। बंगाल क्यों पिछड़ रहा है? बंगाल इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि बंगाल को चलाने वाला नेतृत्व इन चीजों के प्रति प्यार नहीं रखता है। आज ममता जी मुख्यमंत्री हैं और वो महिला है, और सबसे ज्यादा महिलाओं की ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं दे रही है। अगर रेप केसेस देखें, बलात्कार के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं की इज्जत ना हो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और यही परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्फान में पहले 1000 करोड़ रुपए और बाद में 1700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए दिए। एटा हिसाब होई ना, जानी ना ये किसके पॉकेट में गया? एटा कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। ये किसके पॉकेट में गया? और आप देखिए, हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से इसकी ऑडिटिंग कराओ। मोदी जी का पैसा मोदी जी ने दिया बंगाल की जनता के लिए, अम्फान के रिलीफ के लिए। खा गए, अनाज खा गए, तिरपाल चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कट मनी ले लिया, हिसाब किताब नहीं दिया। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। यानी प्रदेश का नेता ईमानदारी लाने के बजाय बेईमानी को प्रश्रय दे रहा है। ममता जी, ऐतो भय कैनो, इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है? क्या चोरी की है? क्या खाया है? आज दुख के साथ कहना पड़ता है, विकास के नाम पर सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की संतुष्टिकरण, मैं फिर बोलूंगा टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये क्या चल रहा है? कट मनी, यही कल्चर हो गया यहां का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को कोरोना के दौरान 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया, 80 करोड़ की जनता को। लेकिन जब बंगाल की बात आई तो चावल कहां मिला? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में मिला।
दाल कहां मिली? तो टीएमसी के घर के कार्यकर्ताओं के घर में मिली। ये क्या है? और ममता जी बोल रही है हमारा शासन, हमारा शासन। अपनी शासन जाएगा, आपका शासन जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, बंगाल मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए और यही परिवर्तन यात्रा है। मुझे समझ में नहीं आता, हमने नारा नहीं लगाया, लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम का। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? क्या दिक्कत है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है क्या? क्या अपने महापुरुषों को याद करना गलत है क्या? अगर कोई नारा दे देता है तो इतना गुस्सा लाल पीला होएगा चे? इतना गुस्सा काहे का? मित्रों, यह बताता है कि इन लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। भारत की संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, राजनीति के कारण वोट के खातिर अपने जमीर को भी नीचे लगा देंगे। यह इनकी परिस्थिति आकर के खड़ी है। अपने कॉन्शियंस को भी मार देंगे। यह इनकी स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईस्ट कॉरिडोर खड़गपुर विजयवाड़ा इसका बनाने का काम शुरू किया है। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भूसावल और खड़गपुर और दानकुनी को जोड़ने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से पेटू घाट फिशिंग हार्बर को पूरी की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी तरीके से 1000 करोड़ रुपए बंगाल के टी गार्डन्स की महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको बढ़ाने के लिए देने का काम किया है। यह हमको समझना चाहिए। हमारी ममता दीदी की आदत है, अपना तो कुछ है नहीं लेकिन चीटिंग में भी आगे रहती। चीटिंग में भी कैसे? हमारा स्वच्छ भारत, हमारा मोदी जी का पैसा, एक है बंगाल निर्मल बांग्ला, नाम अब बदल दिया, सिर्फ नाम बदल दिया। काम मोदी जी का, नाम ममता का। ये सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बना दिया बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी बना दिया। ये योजनाओं का नाम बदल करने से ममता जी, आप बंगाल की जनता को आगे नहीं जीत सकती हैं। बंगाल की जनता ने अपने दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी जी को बैठा लिया है। कमल खिलेगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके साथ बहुत सी बातें की हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, कोई विरोध में बोले, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, फिर चाहे वो कोई एडवोकेट हो, उसको अंदर डाल देने का काम ममता जी ने पकड़ा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस किसी ने भी ममता जी का क्रिटिसिज्म किया, उसको अंदर डालना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इस तरीके के काम को शुरू किया है। अगर हम कम्युनल वायलेंस की बात करें तो वह भी जिस तरीके से ममता जी के राज में बढ़ा है, वह हम सब लोगों को मालूम है। इसीलिए मैं आप सबको एक ही निवेदन करने आया हूं कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम सब लोग इस कोशिश को करें कि यहां पर भारतीय जनता, और कोशिश नहीं, मुझे ये जनता दिख रही है, ये साफ बता रही है कि आपने तय कर लिया है परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय हो चुका है। और मैं एक बात और कहूंगा कि पीसी भाइपो की सरकार की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना होगा कि ये सत्ता बनाए रखने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगे। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि और नहीं अन्याय, अब और अन्याय नहीं सहेंगे और हमको आगे बढ़ना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चुनाव में बंगाली और बाहरी का नारा लगाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल की कल्चर की रक्षा बंगाल का नेतृत्व करेगा और अच्छे से करेगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसी तरीके से ये परिवारवाद को बढ़ावा देंगे,
पीसी भाईपो और कोई चाइना, इनको आपने भेजना है और यहां प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए हमको खड़ा करना है। ये आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाएंगे, लेकिन हमारा नारा एक ही होना चाहिए, आर नहीं अन्याय, अन्याय। अब और अन्याय नहीं सहेंगे। उसी तरीके से ये गलत आंकड़े देकर के भी लोगों को हर एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इनको पहचाने, जाने और परिवर्तन में अपना योगदान करें। और मैं जानता हूं कि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव गांव, घर घर, हर जगह जाकर के हमको अपनी आवाज रखनी है। मैं आज अभी चैतन्य महाप्रभु जी के जन्मस्थली पर जाने का वहां उनको नमन करने के लिए गया था। रास्ते में जिस तरीके का मेरा स्वागत हुआ, वह बताता है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन लाना तय कर दिया है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, अनेक होय छे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। अनेक होय छे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। और मैं दूसरी बात कहूंगा, चाल चोर के, तिरपाल चोर के, राशन चोर के, गोरू चोर के, देखिए मैंने नहीं कहा, लेकिन जनता ने कहा। यह जनता की आवाज है। इनको बताना पड़ेगा कि ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको बंगाल की जनता ने नमस्ते कह दिया है। परिवर्तन आएगा। आप सब लोगों के सहयोग से हम इस परिवर्तन को लेकर के चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इस चुनाव में बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के यहां भी विकास होगा। और जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जिनको यहां रुकावट बनी है, वो रुकावट हटेगी, विकास होगा, सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार जाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस परिवर्तन यात्रा में जुड़े, यही मेरा निवेदन है। 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। अगले 2-3 दिनों बाद मैं फिर आऊंगा, अगली परिवर्तन यात्रा को भी प्रारंभ करूंगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वह भी 2 यात्राओं का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यहां बंगाल में एक एक जिले से होते हुए परिवर्तन यात्रा निकलेगी। उसका हम सहयोग करें, समर्थन करें। बंगाल में जो नई हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी को नमस्कार करने के लिए आतुर है, उसका हम समर्थन करें, उसको हम ताकत प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। আমি আমাদের সম্মানীয় যশস্বী সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি, সম্মানীয় ডক্টর জেপি নাড্ডা জিকে অনুরোধ করব, পরিবর্তন যাত্রার শুভারম্ভ উনি করবেন এবং এখানটায় ফ্ল্যাগ অফ করে পরিবর্তন যাত্রার শুভারম্ভ করবে এবং এই নবদ্বীপ জোনের পরিবর্তন যাত্রার প্রমুখ কল্যাণ চৌবের হাতে উনি ফ্ল্যাগ তুলে দেবেন। এই মঞ্চের উপর থেকেই উনি ফ্ল্যাগ অফ করবেন, করে পরিবর্তন যাত্রার শুভারম্ভ করছেন। পরিবর্তন যাত্রার শুভারম্ভ করছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা এবং তার সাথে আমাদের বাংলার সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গী, মুকুলদা, সবাই
घुमा ऐसे তুলতে হবে গাড়ি ঘোরাচ্ছি এটা ওইটা টুলটা সরিয়ে নিন थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे वीडियो निচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ थोड़ा पीछे मिडिल तो जाइए जाइए दो तीन आदमी रहिए सारे लोग कहाँ गया लगी दे लगी दे এই মনে এই সরাই দে এই সরাই ঠিক আছে দাদা সামনে যাবেন দাদা দাদা সামনে প্লিজ যাবেন না এটা অনুরোধ हेलो जी जी দেখি সাইড দাও अरे सरे जाओ नहीं नहीं वही पे ए ओरिना আমার ছবিটা কল दो लाइन पहले से ना जैसे संजय बहन है आप लोग इधर भाई है अरे बैटरी नहीं कहाँ जा रहा है उज्जवल उज्जवल अरे मेरे को बैटरी खत्म हो रहा है जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगा जल्दी कीजिए जल्दी ही कर रहा हूँ भाई स्टार्ट हो जाएगा तो अरे हो जाएगा अभी क्या करें खत्म हो जाएगा ठीक है इतना हड़बड़ मत करो ये बैग में डालो बैग में नहीं अपने अपने अरे गिर जाएगा चेन बंद करो पूरा चेन बंद करो आ जाओ हाँ रुको बंद किया हो बंद किए हो हाँ? अरे यहीं पे हैं लेकिन आएंगे क्या जानी ना समझे এবার আমাদের পরিবর্তন যাত্রা স্বাগত করছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি সম্মানিত জেপি নাড্ডাজি সাথে
ফটো ফটো হয়ে গেছে আর কেউ আসবে না হয়ে গেছে করবেন না ঠিক আছে শুনলাম না ভাই সমস্ত জায়গায় ঘুরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বল ফটো हाँ अरे यही तो पता है वहाँ बैठे हुए थे नड्डा जी अरे छोड़ो ना रे भाई तुमरा अभी तो भारत माता की भारत माता की आदित्य संगीत संगे हारिए गए अरे सर गेट बंद करिए क्या नीचे से हो रहा नीरज जैन, सिविल जज राजकोट, आप सभी महानुभावों का तहे दिल से आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, यह गाथा है गौरव की, यह गाथा है परमार्थ की। गुजरात उच्च न्यायालय अब वह वटवृक्ष बन चुका है जिसके फलों का लाभ समाज के हर भाग को प्राप्त हो रहा है, जो न्याय का वहन करने के लिए सदैव तत्पर है। We are here on the